आप सबकी बातों का अभी जवाब देता हूं 2 मिनट बाद। ट्रंप मौत को मात देकर आ गए, ठीक है ना? कैसे, आइए देखें। और कैसे इस शूटआउट पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। Yeah, estamos on the roof. Look. Gary's right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. What's happening? Yeah, look. There it is. Dangerous people. Criminals. We have criminals. We have people right there, right on the road. पूरी दुनिया ने देख लिया कि कोई ऊपर चढ़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं धनादन धनादन कि भाई यहां पर कोई चढ़ा हुआ, जरा देखिए, ठीक है ना? कमाल है। इसके बावजूद पुलिस को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी को समझ में नहीं आ रही। लोगों को, इसके बाद भी लोग बैठे हुए हैं आराम से, पुलिसकर्मी, वहां के स्नाइपर्स, मजाले की कोई एक्ट करे, मजाले की कोई इसको गोली मारे। अभी रुकिए, अभी तो शुरू हुआ है। आइए साइड बाय साइड देखते हैं कैसे हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और यहाँ पब्लिक है। Yeah, don't come off the roof. Look. Gary's right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. What's happening? Yeah, look. There it is. Because we have millions and millions of people in our country that should be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. We have criminals. We have people that should not be here. It's much tougher than this. In recorded history, we're the best border. In fact, if they could ever put up a chart, I don't know if they could do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? Because these teleprompters are so damn boring, I try and explain that. Oh, there's it. Wow. You guys are doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at the arrow in the bottom. See the big red arrow, right? So that's where I left office. That was the lowest point, and that comes right from the government services, comes right out of Border Patrol. Take a look at that. So that arrow is the lowest amount of illegal immigration ever in recorded history into our country. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit over that chart. That chart's going to be insulted if you get one of these issues. पूरे 2 मिनट पहले लोगों ने बता दिया था, पूरे 2 मिनट पहले कि यहां पर कोई है। इतना समय था सर, 2 मिनट, 120 सेकंड्स। बहुत आराम से मारा जा सकता था, सब कुछ किया, फिर क्यों नहीं मारा इसको? कहां दिक्कत हुई? नवीन जी आइए, स्वागत है भाई। कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं कुछ इशारा कुछ और कर रहा है। बहरहाल सबसे पहले मारने वाले को देखेंगे कि मारने वाला कौन है। अच्छा जी, तो ये है साहब जिनको आखिरकार मार गिराया गया, और इसी ने निशान लगाया था ट्रंप पर 1 मिनट। मामला कुछ और है, इनके सहपाठी तो कुछ और ही बता रहे हैं, सुने। I mean, he would sit alone at lunch. I mean, he was just an outcast, and you know how kids are nowadays. So they're gonna see someone like that, and they're gonna target him because they think it's funny or whatever. So it's the best way I can describe it. And it's honestly kind of sad. Like, I don't want to say that's what provoked it, but you never know. Yeah. I want to say he was a loner more because he was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much. He was in high school? Yeah. What did they do? Remember at all? What they said to or called him? No. He was just made fun of, I guess, for the way he dressed or his appearance. I mean,
तो साहब ये जो लड़का है जिस व्यक्ति ने गोली चलाई ट्रंप के ऊपर, कान को चीरती हुई जो निकल गई, निशाना तो बड़ा ज़बरदस्त था। पर क्या आप जानते हैं, इसको शूटिंग एकेडमी में से, जहाँ ये पढ़ने जाता था, जिस शूटिंग एकेडमी में जाता था, उस शूटिंग एकेडमी में से थॉमस मैथ्यू को क्रुक्स को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था कि उसके निशाने अच्छे नहीं थे, वो ढंग से निशाना नहीं लगा पाता था। सो फिर इसको लेकर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, जो उसके बाकी के सहपाठी थे, जो बाकी इसके साथी थे। कुल मिलाकर बात यह है कि इसको तो निशाना लगाना आता ही नहीं था, तो इसने इतना अच्छा निशाना कैसे सीख लिया, कब सीखा, किसने सिखाया? कोई तो होगा जिसने सिखाया। ऐसा तो नहीं कि कोई पीछे पीछे बैठ के कुछ काम कर रहा है। सिक्योरिटी माइट थॉट ही सन बाथिंग। अरे साहब, बिल्कुल ऐसी गजब की सन बाथिंग हमने आज तक नहीं देखी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जिसको निशाना लगाना नहीं आता था, उसने निशाना लगाना एकदम से बड़े जोर का सीख लिया। लोग इसका मजाक उड़ाते थे, इसके रहन सहन के हिसाब से, इसकी शूटिंग नहीं कर पाता था इस हिसाब से। लेकिन एक मिनट, दैट गाय मेड दिस प्लेस अ स्पेशल प्लेस टू कम टू स्कूल एंड। अच्छा, कहाँ है ये? देखें, यूनिट 3, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ब्लैक रॉक। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ कि सारा लफड़ा कहाँ से चल रहा है। ये काले वाले पत्थर से चल रहा है सारा लफड़ा। कल हमने आपसे कहा था कि ये पॉलिटिकल नहीं होके ये मामला कहीं और जा रहा है, ये मामला बिजनेस हाउस पर जा रहा है। और आज ब्लैक रॉक की इसमें जो एक तरह से संलिप्तता कहें तो वो नज़र आ रही है। ये बंदा ब्लैक रॉक के कमर्शियल में बाकायदा फीचर किया, जिसने गोली मारी। हो सकता है इत्तेफाक हो, हम तो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन मामला तो गंभीर है भाई। ब्लैक रॉक से जुड़ता हुआ, और ये वही कंपनियां हैं जिनका नाम लेकर ब्लैक रॉक का नाम लिया था ट्रंप ने, और कहा था इन कंपनियों को मैं टैक्स करूंगा और इन कंपनियों को हैवी टैक्स करूंगा, इनका जो फ्री पीरियड है दैट इज़ ओवर। तो ये जो बड़े लोग हैं, इनको टैक्स करने की बातें हो रही थी। हम नहीं कहते कि ये सही होगा, पर हमें कुछ और भी दिख रहा है जिसको देखकर आंखें बंद नहीं की जा सकती। यहां से देखिए, ये लेडर बाकायदा लगाई गई थी और यहां शूटर था। ये लेडर किसने लगाई थी? यहां पर बहुत सारी बातें हैं। क्या ये इनसाइडर जॉब था? क्या सीक्रेट सर्विसेज वालों ने लगाई थी? लेडर वहां आने का पर्पस क्या है? वहां तो लेडर कभी रहती नहीं थी, तो वहां पर जो है ये सीढ़ी नसैनी कैसे आ गई? जिसको निशाना लगाना नहीं आता था, उसने निशाना कैसे लगा लिया? ब्लैक रॉक का और इनका क्या संबंध है इस व्यक्ति का? उन्हीं के साथ ये तार क्यों जुड़ते हैं जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बात करते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी का भी नहीं है। लेकिन खैर, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट बड़ी भयंकर वायरल है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। ऊपर फोटो है, नीचे है, दे वोंट लेट मी टेक आउट शूटर एनोनिमस। माई नेम इज जॉनथन विलीज. I am officer in the famous photo of the two snipers on the roof at Trump's rally. I came here to inform the public that I had the assassin in my sight for at least 3 minutes. But the head of the Secret Service refused to give orders to take out the prep. 100% the top brass prevented me from killing the assassin before he took the shots at President Trump. अब ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। इसमें अपने आप को जॉनथन विलीज बता रहे हैं, जो भी सज्जन हैं, और साथ में कह रहे हैं कि मेरे निगाह में 3 मिनट तक था और 3 मिनट तक मैं उसको गोली मार सकता था, और मैंने ऊपर अपने जो बॉसेस हैं उनको बताया था कि ये मुझे दिख रहा है और मैं इसको गोली मार सकता हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं इसको गोली नहीं मारनी। बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं वो वक्त बताएगा। अमेरिका में तो ये भी नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, क्योंकि वहाँ तो कभी पता ही नहीं चलता। पर खैर, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन बहुत सारी जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को नकार भी दिया जाएगा कि नहीं ये तो गलत है, ये तो फलाना, ये तो ठिकाना। लेकिन कुछ चीज़ें जो रिकॉर्ड हो गई, उनको जिनको आप नकार नहीं सकते, उनमें से एक वीडियो और आपके सामने, इसको भी देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए ये क्या हो रहा है। Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. She's completely normal. And then watch. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. And she's just like right there. She's not even freaking the fuck. Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. She's completely normal. जैसे ही आवाज़ आती है शॉट्स फायर्ड की, इन मोहतरमा के चेहरे पे मुस्कान आती है। She's completely. She's. बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है। बहुत सारे इत्तेफाक एक साथ जुड़ रहे हैं।
कि ये बैठी उसी समय गोली चली और इनको घबराहट नहीं हुई, कुछ नहीं, लोग इधर उधर भागने लगे, ये बिल्कुल नहीं, उन्होंने आराम से अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। या तो पागल हो सकती हैं, अन्यथा कोई सामान्य इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। ये सिर के ऊपर से जा रही है बात। पर गोली भी तो सिर के पास से ही निकली थी। एक बार जरा गोली का भी नज़ारा देख लें। You see something that said, take a look what happened. You see something that said, take a look what happened. सिर घूमा और चली गोली, बच गए बाल बाल। मिली सेकेंड्स का खेल है। Take a look what happened. ये घूमा, हेड टिल्ट, और ये चली गोली। अब इसको जरा यहां देखिए, ये सिर था ऐसे और जैसे ही घूमा गोली निकल गई। अगर सिर नहीं घूमा होता तो यही गोली सिर फाड़ती हुई निकल जाती डोनाल्ड ट्रंप का। बड़ा अजूबा, बड़ा अचंबा है, बड़ा अचंबा, गजब हो गया। यूं कहें कि भगवान ने बचा लिया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वाकई में पॉसिबल नहीं है। खैर आगे देखते हैं, कुछ और लोग भी कुछ बता रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं सर, सवाल यदि आपको समझ में आए तो बताइएगा। Former Secret Service agent Dan Bongino joins me now. Is this gross incompetence or is it something even more scary that we can't even think about? फॉर्मर सीक्रेट सर्विस एजेंट है डैन बॉन्जिनो। ये वही हैं जिनका ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। ये वही हैं जिनके तमाम सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स मेटा पे इधर उधर बैन कर दिए गए, बाद में हालांकि अभी वापस आए हैं। No, it's gross incompetence. I mean, how do you let, I mean, think about it, right? The counter sniper team, they train out, the Secret Service counter sniper team, obviously they had a mitigated sniper threat. They train out to 1,000 yards. So we're talking about, say it was 200 yards, it was actually less than that where this shooter was, right? You're talking about a fraction of what they're trained at. They're also trained to spot guys in ghillie suits, open windows. Right. He's on a white roof in broad daylight. He's on a white roof. Now, again, it'd be easy for me to say, oh, well, let's not get into Monday morning quarterback. Bro, it's not a freaking football game. It's the President of the United States' life. The Secret Service has one job. Well, outside of counterfeiting and protection, there's one job. You keep the body alive no matter what. They came within a millimeter of this guy losing his life. I don't understand some of the commentary that's, they did a great job. Well, the body guys, that response was, I mean, brave. No, they ran up there. They didn't know there could have been 10 more shooters. Right. No doubt. No, those guys, pretty heroic what happened there. But the security failure in the perimeter is a complete, total debacle. Defend this. So when you... तो कहते हैं साहब कि 600 मीटर्स के लिए ट्रेन करते हैं, ये तो 200 मीटर भी नहीं था। बिल्कुल सही बात है, बहुत करीब था। छोटी सी जगह पेंसिल्वेनिया में गए थे, कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, वहाँ पर ये घटना हुई और बहुत इजीली इसको बहुत पहले मारा जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद नहीं मारा। जो एक्स सर्विसमैन है वो भी हैरान है, जो सीक्रेट सर्विस में इनकी काम करके आए हैं वो भी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा चूक कैसे हो गई, चूक हो गई या जानबूझ कर करी, ये तो शायद ही कभी पता चले। Let's bring in Florida Congressman and former U.S. Army sniper, Corey Mills. What kind of shot was this, Corey, from 130 yards? Look, at the end of the day, this is a shot that your basic training boot camp soldier is requested to make within their 9-week period. This is one of the easiest shots, and they train all the way out till 300 or 500. And when I was doing the counter sniper, it wasn't with the United States Army, it was actually when I was with the State Department, and was doing this exact thing, which is trying to look at going out with an advanced team, establishing what the perimeter is, and then as a sniper, when you would set up, you'd put together your range schedule, your range fan cards, and that would tell you where your 100, your 200, your 300, and you'd identify the areas of threat that you would be able to mitigate. And if there's multiple targets, you understand that your elevation and windage knob wouldn't have to be messed with, especially at 160 yards. You could literally just look, quickly glance, and know from the reference point whether it be a building, whether it be a lone tree, whether it be a parking lot, maybe it's a road. Bottom line is that this is massive negligence to the point of me speculating on what was intentional and what wasn't. Wow. सभी का एक ही कहना, भाई बहुत पहले इसको गोली मार देनी चाहिए थी। तो मारी क्यों नहीं? अभी ब्लैक रॉक का बात आई है। कुछ दिन पहले लेफ्टिस्ट ने एक प्रोग्राम किया था, ब्रॉडवे प्ले। उस ब्रॉडवे प्ले में उन्होंने क्या किया था, जरा देखें। Just like President Donald Trump as he's assassinated on stage. Look as his character is stabbed to death. And there's no mistaking the Trump connection. Check out the unbuttoned overcoat and red tie that hangs over his waist. It's a staging of Shakespeare's Julius Caesar that is outraging many. The controversial... तो कुछ दिन पहले ही इसकी प्ले किया था, स्किट किया था। तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी कि कैसे मारेंगे, क्या करेंगे। कुछ याद आया? रात को कोई आता, उसने बताया था कि कोई कार्टून वार्टून बन गए थे, गाने बन गए थे, पहले से ही तय हो गया था कि मोदी को मारना कहाँ है, किधर, फ्लाईओवर पे, है ना।
याद आ गया? एल्गार परिषद पहले से ही तय कर लिया था उन्होंने कैसे मारना है मोदी को, प्लानिंग चल रही थी। यहाँ पर भी इतने डेस्परेट थे ये कि ये प्लेज में मारने लगे मोदी को, ट्रंप को। इतने डेस्परेट हो गए कि हम तो प्ले में ही मारेंगे, हम नाटक में ही मारेंगे, स्टेज पे भाषण देते में ही मारेंगे। स्टैबिंग की जगह बस गोली हो गई, फ़र्क इतना सा हो गया, स्टैब तो कर नहीं पाए। ठीक है, मैंने सुना था कि पहली बार श्री जगन्नाथ यात्रा न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप ने ही निकलवाई थी। क्या जान बच जाना उसी का तो पुण्य नहीं था? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जान तो ऊपर वाले ने बचाई है, इसमें तो किसी कोई संशय नहीं ना किसी भी प्रकार का। सोचिए, ऐसे का बस ऐसे हुआ था और गोली निकल गई, सटाक, खेल हो जाता है इतने से में। गुरु जी, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान महादेव ने मृत्युंजय का रूप लिया ट्रंप के लिए, जैसे ऋषि मार्गदर्शन के लिए लिया था उन्होंने। इसमें कोई दो राय नहीं भैया, ये बिल्कुल बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन है जिसने बचा लिया। तो ये लोग तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, बहुत परेशान थे। पर खैर, हमने आपसे कहा था ये तस्वीर इतिहास रचेगी अमेरिका में, और इतिहास रच रही है। You have 3 lives out here in the world. Person canceled, you die. When it's like a blue jail, somebody just don't die. And if that doesn't happen, they kill you. Imagine shooting a man who's your last. फर्स्ट दे कैंसिल यू, पहले वो आपको कैंसिल करते हैं, बैन कर देते हैं। देन दे पुट यू इन जेल, ट्रंप के खिलाफ खूब सारे उन्होंने केसेस लगाए। एंड देन उसके बाद भी काम नहीं बनता, देन दे किल यू। And he stands there, unfazed. It's very difficult to become rich and famous in the world today without being paid. You're allowed to be loud, you're allowed to scream, you're allowed to be a child, you're allowed to get kids into city garbage, you're allowed to be an idiot. You're not allowed to talk about anything important on these platforms. Most kids don't actually have the ability to make money without this platform. So they sell their soul in return for money, and the only reason they're famous is because they're propagated and pushed to the front by these platforms in the first place. So they'll come along and they offer you money. They say, listen, we're going to make $55 million, we're going to be more famous than ever before, we're going to get more views than ever before, plus we need this guaranteed amount of money, but to make sure we don't rock the boat, we have to have official opinions on X, Y, Z, or don't mention X, Y, Z. Basically what they're trying to do is neutral. If you say no to the money, which bothers them alone, it becomes a protection ground. So the mafia used to walk into stores and say, आगे की कहानी बता रहे हैं जो हुआ उसके बाद की, कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, ये इजी मनी आपको दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स लोग बन रहे हैं, यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं दूसरी जगह से। वो आते हैं और बताते हैं आप ऐसा ऐसा कंटेंट बनाइए, इसके खिलाफ बनाइए या इसके खिलाफ मत बनाइए, पैसा आपको मिलेगा। अगर आपने पैसे की ना कर दी तब क्या होगा? पैसे की ना करने पर जो होता है वो देख लीजिए। people are going to break your windows, but if you pay us, we'll stop them from breaking windows. And if you don't pay the mafia, they then break your windows themselves. It's exactly the same. They come to you and say, we have the leading PR firms, we have the leading legal teams in the world. So not only do you get money, you get public relations and legal protection. You say, no, I don't need these things. I'm not doing anything wrong. It's fine. I can hire my own lawyer and I'll handle my own PR. They double down and say, no, you don't understand. We have the best PR teams that bring links with the media, and we have the best lawyers globally. And you sit there and say, I understand what you're saying. I understand this is a protection racket. I get it. I'm just saying no. Once they understand that you're not afraid of it, you've declined the money, you've declined the PR, you've declined the legal assistance. That's when trouble starts to appear. That's when the mainstream media starts to attack you in perfect synchronicity. You're watching this at home. You are guilty of something that they want to find you guilty. Now knowing what you know, you can take this information, you can take these parameters, you can look at every single person you see who is famous, and you can see who is sold their soul to the devil, and who is still sold their soul. बेहतरीन वीडियो बनाया, जिनके समझ में आया, बहुत गंभीर वीडियो है। कहते हैं कि पहले वो आपको फेमस करते हैं, पैसे के लिए आपने ना कर दिया और नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद वो आपके पास में आते हैं, कहते हैं कि हम आपके प्रोटेक्शन करेंगे, आपके बड़े बड़े जो PR फर्म्स हैं उनके साथ जुड़वाएंगे, हमारे पास में लॉयर्स हैं बड़े बड़े, आपके खिलाफ में कुछ होगा तो उसको हम देखेंगे। कोई आपके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगा। आपने कह दिया ना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कहते नहीं, आप समझे नहीं, हमारे पास में लोग हैं, वो आपको बचाएंगे। आपने फिर भी कह दिया कि ना, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है, मुझे आपके लॉयर्स की ज़रूरत नहीं है। तब वो अपने ही लोगों को, अपने ही कुत्तों को आपके पीछे छू कर देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम होता है मीडिया का। और मीडिया एक अच्छे भले आदमी को क्या करता है? पेंट कर देता है बुराई में। जैसे अपने आप ही चलता ना कि कोई किसी के अगेंस्ट में चला जाए तो IT सेल उसको पेंट कर देता है एकदम से, खटाक से उठा के, एकदम से, तुरंत, और आप लोग मान भी लेते हैं। तो ये ताकत है इनके पास में, ये ताकत है बड़े लोगों के पास में, जितने भी बड़े लोग हैं। और ये बड़े लोग, इनमें से आप कभी भी बड़े लोग नहीं, बड़ा आदमी नहीं बन सकते। आप एक बात को समझिए, वो ज़माने लग गए जब आप कुछ पैसे बनाते थे। आज की तारीख में आप पैसा बना लीजिए, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, लेकिन यदि आप 500 करोड़ या उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आप बिना सरकार के नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, आपके छापे पड़ जाएंगे आपके ऊपर, और मीडिया के अंदर ये बता दिया जाएगा कि आप गलत हो। बेशक आप शुद्ध देसी घी बेच रहे हो, आपको साबित कर दिया जाएगा कि आप तो मिलावट का माल बेच रहे हो। आपको नकमस्तक होना ही पड़ेगा, नाक रगड़नी ही पड़ेगी। उन्हीं के हिसाब से आपको चलना होगा जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आपके सरकार में भी घुसे हुए हैं वो लोग, है ना, ये मत सोचिएगा नहीं घुसे।
Lord Jagannath Kripa 48 years ago, Trump has given ISKCON permission to build Ram Rath and premises belong to him. अच्छा जी, कौन है आप? वीज़ा, अच्छा नाम ही नहीं तो क्या करें. सेम थिंग हैपनिंग इन यूपी बिफोर योगी. सबके साथ होगा सर, बचना थोड़ी कोई है, ठीक है ना. तो ये जो उन्होंने एक सिस्टम पूरा तैयार कर रखा है, बात उसकी है. बात हो रही थी मीडिया की, क्या मीडिया ऐसा करता है, मीडिया लोगों को पोर्ट्रे कर देता है, कैसे ऐसा करता है, सब फालतू की बात है. चलिए देखते हैं. संडे ओपिनियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स. He failed the test of leadership and betrayed America. Voters must reject him in November. वाह, ये ऐड नहीं है सर, ये संडे ओपिनियन न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है. उफ, और ये एनालिसिस है इनका, कमाल है, गजब हो गया. तो इसका मतलब जो बातें हो रही थी, जामवाल जी एकदम सही एग्जाम्पल पकड़ गए आप. मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने लिख दिया. तो इसका मतलब जो बातें हो रही थी मीडिया के बारे में वो सही थी. चलिए अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है. और लोगों को देखते हैं, और लोगों ने क्या लिखा. मस्क द प्रो ट्रम्प बिलियनियर हैव हेल्प्ड शेप शूटिंग नैरेटिव. शूटिंग नैरेटिव, ये वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, WP. तो मस्क ने नैरेटिव बना दिया, तो वो तो दुनिया ने देखा गोली चलते हुए. अच्छा फिर भी नहीं बताना है, तो न मस्क ने नैरेटिव बना दिया, तो अपन को क्या बताना था फिर? गोली चली तो अपन क्या बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई, ये नहीं बताना है. नहीं, बिल्कुल नहीं. फिर क्या बताएं? आइए अलग अलग अखबारों पे चलते हैं अमेरिका के. देखिए कितनी फ्री प्रेस है. वॉशिंगटन पोस्ट, ट्रंप एस्कॉर्टेड अवे आफ्टर लाउड नॉइज एट PA रैली. जोर की आवाज हुई तो ट्रंप को अलग ले गए. ABC न्यूज, ट्रंप एस्कॉर्टेड ऑफ स्टेज बाय सीक्रेट सर्विस ड्यूरिंग रैली आफ्टर लाउड नॉइजेस रिंग आउट इन द क्राउड. अरे बड़ी आवाजें आई थी जोर जोर की. अच्छा अच्छा, कुछ हुआ? फायरिंग थोड़ी हुई. फायरिंग कौन लिखेगा? किसमें हिम्मत है जो फायरिंग लिख दे? NBC न्यूज, सीक्रेट सर्विस रशेस ट्रंप ऑफ स्टेज आफ्टर पॉपिंग नॉइजेस हर्ड इन हिज पेंसिल्वेनिया रैली. वाओ. न्यूज़वीक, मागा रिस्पॉन्ड विद आउटरीच आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप इंजर्ड एट पेंसिल्वेनिया रैली. चलो इंजर्ड तो लिखा भाई, इतने तक तो आई कहानी. ट्रंप रिमूव फ्रॉम स्टेज बाय सीक्रेट सर्विस आफ्टर लाउड नॉइजेस स्टार्टल्स फॉर्मर प्रेसिडेंट क्राउड. वाह वाह वाह, गजब है साहब. CNN, सीक्रेट सर्विस रशेस ट्रंप ऑफ स्टेज आफ्टर ही फॉल्स एट रैली. अच्छा, ट्रंप गिर गया था तो ट्रंप को फटाफट फटाफट वहां से हटाया स्टेज पे से. गिर गए थे, पता ही नहीं. तुम बेवकूफ हो तुम लोग. ये अपना इलाकी अपना बिया वकूफ है रे बाप. बोला गोली चली किया घर पे भी नहीं चली. हाँ, समझो बात को और मत निकला करो रात को. मैं हैरान हूं देखकर, इस नंग नाच को आप क्या कहोगे? वैश्याएं भी कोठे पर ऐसी नहीं नाचती जैसे मीडिया नाच रहा है. मैं हैरान हूं साहब देखकर कि आखिर ऐसा कोई कैसे लिख सकता है, जबकि लाइव सबको उस समय, जिस समय गोलियां चली थी, विदिन 5 मिनट्स मेरे पास न्यूज आ गई थी, वीडियो आ गया था मेरे पास. 5 मिनट बाद मुझे मालूम था कि गोली चल गई और साफ दिख रहा है गोली चल रही है, अगले के खून निकल आया. आप कहते हो गिर गया स्टेज से? आप लोगों ने तो लाइव देखा था, तो लाइव चल रहा था. हाउ टू मेक फूल इन ब्रॉड डे लाइट शुड लर्न फ्रॉम मीडिया. एब्सोल्युटली साहब नवीन जी, मतलब ये तो अति हो गई. इतना बुरा हाल भाई. हमारे यहाँ का मीडिया तो बहुत अच्छा है इस हिसाब से. भारत का मीडिया तो ऐसा है जिसके पैर धोके पीने चाहिए फिर इस हिसाब से. पर भारत की मीडिया ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया. ऐसा छक्का मारा. जो हेडलाइन आप मेरे इसमें देख रहे हैं वो हेडलाइन असल में मेरी नहीं, वो हेडलाइन मैंने कहीं और से लिखी क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी, बेहतरीन लगी. ये देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कभी तो अच्छा लिखा, डोनाल्ड ट्रंप्स डेथ है. आपको एक मिनट को लगेगा डोनाल्ड ट्रंप की डेथ. नहीं नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप्स डेथ. क्या जबरदस्त उपयोग किया शब्दों का. नहीं, मौत को मात दे दी डोनाल्ड ने. ये लिखा है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपके में कुछ गलत लिखा है. नहीं, सही लिखा है. आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप्स डेथ लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं लिखा है, ट्रंप्स लिखा है. डेथ. तो बहुत सुंदर उपयोग किया और बहुत बेहतरीन कवरेज भी दिया. शब्दों का जो खेल है, हेडलाइन बस इसी से बनती है, शब्दों के खेल से ही. मैं हैरान हूं देखकर कि भाई अमेरिकन मीडिया का ये हाल है. पर अमेरिका की मीडिया नहीं चाहती कि वहाँ के लोगों को सच्चाई मालूम चले. तो क्या लोगों को सच में कुछ नहीं मालूम चलेगा और लोग चुप हो जाएंगे? मैंने आपसे क्या कहा था, वो फोटो इतिहास रचेगी. वो फोटो मैंने कहा था ना इतिहास रचेगी. परमानेंट टैटू बनाने शुरू हो गए लोग भाई. वही फोटो, वही जलवा, वही अमेरिकन फ्लैग और वही मुट्ठी और वही डोनाल्ड ट्रंप और वही खून की लकीरें, खून से सना हुआ वो मुंह. मैंने कहा था ना, ये तस्वीर जो है ना, ये चुनाव को बदल देने की ताकत रखती है. डिपेंड करता कि वहाँ के लोग कैसे हैं. वो है ना, अच्छा ऐसा किया तो कैसे, ऐसा बच कैसे गया? मेरे को तो लगता है खुद से ही चलवाया.
ओवर इंटेलिजेंट, ज़्यादा ज्ञानी, जाके कैक्टस पे पेड़ पे बैठ जाते हैं, पूरा पेड़ अंदर, दर्द नहीं साहब। कमाल है। तो जैसा हमने कहा था वैसा ही लोगों का रिव्यू भी आ रहा है, और लोग आज ट्रंप टावर पे पहुंच गए। लोगों ने आज ट्रंप टावर पे पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपना समर्थन दिखाया। जरा उस समर्थन को भी अपन देखें। आज रैली भी निकाली गई न्यूयॉर्क में। वैसे एक बात बताऊं, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रंप टावर के सामने की सड़क है न्यूयॉर्क में। बात करते हैं भारत का मुकाबला करेंगे, खैर कुछ लोगों को बायस्ड है, उनको लगता है भारत कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, बट एनीवेज। तो लोग बढ़ चढ़ कर आए, लोगों ने खूब हिस्सा लिया ट्रंप के फेवर में, ट्रंप के समर्थन में। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ उसको। तो कुल मिलाकर पैट्रियट्स सड़क पर निकल आए, सड़कों पर निकल आए अपने नेता को बचाने के लिए। कभी भारत में ऐसा होगा तो आप लोग निकलेंगे? हो तो चुका भारत में। कौन निकला? घंटा कोई ना निकला। बुरा मत माना कीजिए मेरे शब्दों का। रोक तो लिया था उड़ाने के लिए, हाँ? चलिए, अंकुर जी कह रहे हैं हेडलाइंस आफ्टर इफ ट्रम्प रियली डेड देन हेडलाइन विल बी लाइक ट्रम्प गॉट ब्रेन हेमरेज व्हाइल गिविंग स्पीच इन पब्लिक। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी कर देते हैं। और अगर मीडिया नहीं हो, सोशल मीडिया नहीं होता तो ये आपको पता ही नहीं चलता, कभी नहीं पता चलता कि गोली चली भी है। क्या ट्रम्प के शुभचिंतक लेकिन कुछ बता रहे हैं और बड़ी कायदे की बात बता रहे हैं। President Trump, my president, the United States president, you know who I'm talking to. This kid, you go to Trump Jr. Hey, if you're going to continue to do these debates in these states or in these little cities, and you want some proper protection, this is just a suggestion. This is just my opinion, bro. Because you have a lot of people out there that love you. A lot, right? And it's obvious that the CIA and all these alphabet agencies don't like you. They don't want nothing to do with you. They don't want to protect you. They don't want nothing. So here's my suggestion to you, Mr. Trump, Mr. President, even Trump Jr., if you get this far, huh? Go to the hood, go get you about 30 to 40, maybe 50 of them ghetto-ass motherfuckers, excuse my French, I don't care if they white and black, right? And on the day before, you give them a particular color to wear to protect you, I promise you, that will never happen again. Now listen to what I'm saying. If you decide to continue to do this, and you go out here on these little stands and do all this other stuff, you go straight to the hood, man. Go get you 40 to 50 of them cats standing around the blocks on the corners, and you had them protection. Because I guarantee you, that would have never happened. Because as paranoid as the cats in the hood are, that dude would never got up on that roof. I promise you. Don't let these people protect you because they didn't want you out there in office in the first place. So you know what? Just a little bit of advice from my little brother from the hood. If you ever come to Washington State, you want somebody up there, man, with you protection, give me a call, man. Hit me up on TikTok, bro. I'll be more than happy to stand up there for you. क्योंकि इतने सारे आपके समर्थक हैं जो आपसे प्यार करते हैं, बहुत सारे आपके लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे लोगों को अपनी सिक्योरिटी में रखिए, इनसे सिक्योरिटी मत लीजिए। इस बंदे की बात में आपको कितना दम लगता है? एक बार सिक्योरिटी की बात आई थी तो मेरे बहुत चित बिल्कुल एकदम बहुत खास IPS हैं, उन्होंने कहा था सिक्योरिटी मत लेना और हमारी तो बिल्कुल मत लेना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले 1,50,000 रुपये के लिए यही रेकी कर देगा जो साथ में जा रहा है। बात में दम है। ट्रंप को इस बारे में सोचना चाहिए। यू शुड हैव योर प्राइवेट सिक्योरिटी रादर देन गेटिंग सिक्योरिटी फ्रॉम दीज पीपल। पर खैर, ट्रंप की आज बड़ी जीत हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लेंटिफ वर्सेस डोनाल्ड जे ट्रंप, ऑर्डर ग्रांटिंग मोशन टू डिसमिस सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट क्लॉज वायलेशन। तो जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वाला जो केस था ना, उसे आज
डिसमिस कर दिया गया और जिन जैक स्मिथ का जिसका अपॉइंटमेंट था किया गया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। सो फिलहाल जो है एक अच्छी खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनके समर्थकों के लिए, तो जिंदा भी बच गए, केस भी डिसमिस हो गया। अब क्या करें? अब डोनाल्ड ट्रंप को डाउन प्ले करें अपन। अब जो अटैक हुआ है उसको डाउन प्ले, कैसे अटैक को डाउन प्ले कर सकते हैं? कोई आपके पास आइडिया है क्या? लेफ्ट विंग वालों के पास आइडिया है। हम कॉमेडियंस खड़े कर देंगे ना और वो उसमें मजाक मजाक करेंगे। वो बताएंगे तो गोली चली, लेकिन मजाक मजाक करेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, बेटर सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे कॉमेडी से बड़ी चिढ़ है। Many men, many men. I hope he holds a press conference right after. Many men, many men. They wish I had me. They shot me. They tried to shoot me. That's how you know it was a liberal holding the gun. They missed. They don't know how to hold fire. He didn't even believe in the Second Amendment. It was a fake gun. It was a fake gun. We found out later the bullets, they were real bullets, but they were made in China. That's where they were made. So soft that barely glad I shot the guy bad. Nobody saw that. They cut the cameras. I hope he holds a press conference right after. Men, many men. इतने प्यार से इन्होंने वीडियो बनाया है, लोग ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत के मूर्ख हंसते हैं, वोक भारत के, वहाँ तो सभी वोक हैं। तो जैसे भारत के वो हंसते हैं मूर्खों की तरह, गधों की तरह, वैसे ही गधों की तरह हंस रहे हैं। और उसने इसमें सबको लपेट दिया। उसने ये भी मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये भी कह दिया कि वो लिबरल थे, उनको फायर आर्म्स पकड़ने ही नहीं आते थे। मतलब आपको ये ना लगे कि वो उनकी तरफ है, आपको ये लगे मेरी ही तरफ है। और उसने बहुत आराम से करके डाइल्यूट कर दिया पूरे मैटर को। अब ये मजाक का विषय बन गया कि उन्होंने मुझे गोली मारी पर मार नहीं पाए। फिर वो गोली जो है चाइना में बनी थी, मैंने वही गोली पलट के मार दी, वो मर गया, लेकिन कैमरे वाले रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इस तरह की चीज़ों को करके और आप हंस रहे हो। इतने संजीदा मैटर को मजाक में उड़ा देना कोई अगर कर सकता तो वो लेफ्टिस्ट ही कर सकते हैं, वो कर रहे हैं और ये हो रहा है। आइए साहब आगे चलें, फिर क्या हो रहा है? एक और डोनाल्ड ट्रंप। ये तो ट्रंप का चित परिचित अंदाज है, लाल टाई, वेस्ट के नीचे यानी बेल्ट के नीचे तक, और कोट के बटन्स खुले हुए। Said it would be the end of the United States of America as we know it. Said he would make us a laughing stock on the global stage. And those are exact quotes, actually, of what they said about Abraham Lincoln. So Lincoln had, you might want me to remember that. Those were words that the Democrat-led media said about the first ever Republican president before he was shot and assassinated in 1865. So think about that in the moment that we live in today. We came within, Lincoln actually spoke at this convention. It was at a Republican convention, it was a state convention, Republican state convention in 1858. When he said a house divided cannot stand. That was on the eve of a nation that was on the brink of civil war. I think we came within a hair's breadth of a second civil war in this country, and we avoided it. And I think it's because God intervened. And I believe that He has given us a chance to answer His call. And I think that's the moment we live in right now, is the hard part is we are in a kind of war in this country. But the enemy is not our fellow citizens, actually. It is an ideology. And so this is the work we have cut out ahead of us, is how do we win this war while still viewing our neighbors as our fellow citizens and not as our enemy combatants. Are we up to that challenge? I believe we are. तो साहब कहते हैं जैसे अब्राहम लिंकन को मार दिया गया था वैसे ही इनको भी, जैसा अब्राहम लिंकन के साथ किया गया था उनके मारने से पहले, ठीक वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी किया जा रहा है। उनको डिमोनाइज किया जा रहा है। बहुत सारी बातें कही, सारी बातों पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले भारत में भी जो लोग, कुछ लोग यही प्रयास कर रहे हैं, जरा उनकी एक नज़र देख लें। आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझाएंगे। आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी क्या बात है साहब। तो इस तरह से भारत में इंस्टिगेट कर रहा है। इसको इंस्टिगेशन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं तो हैरान हूं देखकर, ऐसा गजब का इंस्टिगेशन, कमाल है। हो इतने सारे कमेंट आ रखे हैं, यहाँ कमेंट आने बंद हो गए, नहीं आ रहे। तो भारत में भी ऐसे इंस्टिगेशन किया जा रहा है कि लोग मारे। डोनाल्ड ट्रंप को भी किसी वहाँ की सर्विस ने नहीं मारा, एक आम आदमी ने मारा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त की तरह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस फोटो को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त की तरह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस फोटो को देखकर आप कांग्रेस की चमची हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोग इसे मारेंगे बाहर निकलेगा तो। ये कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के लिए मोदी की तरह कुछ भी कर सकते हैं दोस्त की तरह अपने।